Now, today discuss about the next point of Mendel laws of inheritance. So yesterday you studied about the back cross and test cross. Now today discuss about the Mendelian deviations. Mendelian deviations means the few experiments are carried out on the basis of Mendel's principles, that is also commonly called as the neo-Mendelism. And in that neo-Mendelism they are phenotypic expressions of a gene can be modified or influenced by the other genes, and such type of the interactions are of two types. First is called as the intragenic interaction, and the second one is intergenic interaction. Intragenic interaction and intergenic interaction. So first of all, try to understand what is meant by the intragenic interaction. That interaction occurs between the alleles of same gene. Intragenic interaction means the interaction occurs between the alleles of same gene, and the example of intragenic interaction is incomplete dominance and codominance. Second is called as the intergenic interaction, means the interaction takes place between alleles of different genes present on the same or different chromosomes. That intergenic interaction means the interaction takes place between alleles of different genes present on the same or different chromosomes. The example of intergenic interaction is pleiotropy, polygenes, epistaxis, complementary genes, etc. So, try to understand the examples of such Mendelian deviations are get studied in detail. So the first example is about the intragenic interaction, and in that intragenic interaction the first example is the incomplete dominance. First of all, try to understand what is meant by the incomplete dominance. याच्या अगोदर आपण कंप्लीट डॉमिनन्स स्टडी केलेला आहे. कंप्लीट डॉमिनन्स मध्ये आपण जे काही एक्झाम्पल स्टडी केलेला आहे आणि आता जे काही आपण एक्झाम्पल स्टडी करत आहोत त्या दोघांमधला आपल्याला फरक पण बघायचा आहे. तर सगळ्यात महत्त्वाची पहिली गोष्ट, व्हॉट इज मीन बाय इनकम्प्लीट डॉमिनन्स. व्हॉट इज मीन बाय इनकम्प्लीट डॉमिनन्स? A snapdragon, that is the flowering plant, that is the flowering plant that is a pink flower as a result of cross pollination between a red flower and a white flower, when neither the white or the red alleles are dominant. Here try to understand what happens in case of the incomplete dominance. Here, in case of the F1 hybrid, or after the crossing of, that is the two parents, in case of the F1 generation, nobody can dominant, or they are partially dominant over the recessive character, and the result of these two parents is completely differ from their original parents.
So here the best example is given in case of the snapdragon flower. The two parents are crossed with each other. The dominant parent रेड कलर्ड है और रिसेसिव पैरेंट व्हाइट कलर्ड है. ये पैरेंट और फिनोटाइप्स है. इस फिनोटाइप का जो जीनोटाइप है इसे हम डिनोट करते हैं कैपिटल आर से, और व्हाइट को हम डिनोट करते हैं स्मॉल आर से. राइट. सो प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, आफ्टर द cross pollination or after the crossing of these two parents between red and white flower, right, they are neither the white or nor the red alleles are dominant. Here try to understand, इसका जब हम क्रॉसिंग करते हैं, एक कैपिटल आर स्मॉल आर जीनोटाइप है. इसके जो गैमेट्स है, ये गैमेट, ये होमोजाइगस कंडीशन है तो इसका गैमेट कैपिटल आर है. ये होमोजाइगस कंडीशन है तो इसका गैमेट स्मॉल आर है. ये कैपिटल आर और स्मॉल आर जो भी F1 जनरेशन यानी हाइब्रिड में जो प्रोड्यूस होता है वो रेड कलर भी नहीं है और व्हाइट कलर भी नहीं है. ये दोनों का कॉम्बिनेशन जो हमें मिलता है वो पिंक कलर है. इसलिए इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि दैट रेड कलर्ड फ्लावर डू नॉट डोमिनेंट ओवर द व्हाइट कलर्ड फ्लावर. मीन्स दैट द इंटरमीडिएट और ब्लेंडिंग mechanism occurs in case of the F1 generation or hybrid, and that becomes pink colored. So that pink colored F1 generation, when selfing occurs in case of these गैमेट्स कैपिटल आर एंड दैट इज द स्मॉल आर, इसमें हम जब सेल्फिंग करते हैं तो सेल्फिंग करने के बाद जो हमें F2 जनरेशन मिलता है, उस F2 जनरेशन में ये जो कैपिटल आर, ये स्मॉल आर एक तरफ और एक कैपिटल आर और एक स्मॉल आर. ये हाइब्रिड में जब सेल्फिंग होती है, एक तरफ मेल को इंडिकेट किया गया है, एक तरफ फीमेल को इंडिकेट किया गया है, और इसमें से हमें जब ये F2 जनरेशन मिलता है, ये नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज ऑफ ऑफस्प्रिंग्स हमें मिलते हैं, तो इसमें एक प्योरली रेड कलर्ड फ्लावर है. ये प्योरली रेड कलर्ड फ्लावर है, यानी इसका जो पहला पेरेंट है ना, रेड कलर विथ कैपिटल आर. This is the red parent flower producing plant with capital R. The second one is the white colored, that is the small r. ये जो है, ये दूसरा parent जो है, ये white colored parent जिसको डिनोट किया है स्मॉल r से, ये यहाँ पे. ओके. और जो दो parent है ये ब्लेंडिंग मैकेनिज्म के, जो इंटरमीडिएट है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस का जो रिजल्ट है, जो F1 जनरेशन का जो पिंक कलर है, यहाँ पे देख सकते हैं कैपिटल आर स्मॉल आर. ये जो पिंक कलर्ड फ्लावर्स है, ये दो प्रोड्यूस होते हैं. दिस इज द रिजल्ट ऑफ F2 जनरेशन. सो जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड, यू स्टडीड अबाउट द, that is the phenotypic ratio and genotypic ratio of complete dominance. 3:1 is the phenotypic ratio and 1:2:1 is the genotypic ratio. But try to understand, in case of the incomplete dominance, the phenotypic ratio and genotypic ratio both are same. कंप्लीट डोमिनेंस में ये जो रेशियो होता है वो 3:1 होता है, मगर यहाँ पे 3:1 नहीं है. तो इसमें क्या है? 1 रेड कलर, 2 पिंक कलर, 1 व्हाइट कलर. दिस इज 1:2:1. दिस इज द phenotypic ratio of incomplete dominance. While genotypic ratio is also same, that is 1 with capital R genotype, 2R with capital R and W दिखाया गया है. हम यहाँ पे स्मॉल r लिया है, यहाँ पे उसको हम W भी डिनोट कर सकते हैं.
यहाँ पे कैपिटल आर स्मॉल आर भी लिख सकते हैं, और एक जो है वो कैपिटल डब्ल्यू लिखा है यहाँ पे, उसको हम स्मॉल आर भी डिनोट कर सकते हैं। तो जीनोटाइपिक रेशियो भी 1:2:1 है और फिनोटाइपिक रेशियो भी 1:2:1 है, राइट। दिस इज called as the example of that is the incomplete dominance, यानी the genotypic characters of that is the parental generations are partially represented in case of the F1 generation. In case of the incomplete dominance, it is not completely dominant over the recessive parent, or that is the recessive genes. Okay. So next point is that in case of this, try to understand the difference between that is the complete and incomplete dominance. यहाँ पे आप clearly देख सकते हैं कि क्या comparison है इसमें, compare और in case of the complete and incomplete dominance. So first of all, try to understand in case of the complete dominance, the dominant alleles completely मास्क द रिसेसिव वन। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे रेड कलर्ड फ्लावर है, यहाँ पे व्हाइट कलर्ड फ्लावर है, तो कंप्लीट डोमिनेंस में क्या होता है, ये कंप्लीटली रेड कलर्ड फ्लावर प्रोड्यूस होता है। यहाँ पे दिया है द डोमिनेंट एलील, इसमें ये डोमिनेंट एलील, राइट, कंप्लीटली मास्क ओवर द रिसेसिव वन, ये यहाँ पे रिसेसिव है। अभी ये रेड है, ये व्हाइट है, ये कंप्लीटली इसके ऊपर डोमिनेंट होता है या मास्क करता है रिसेसिव वन के ऊपर, और इसमें से जो हमें रिजल्ट मिलता है, जो हाइब्रिड मिलता है, वो कंप्लीटली क्या होता है, दैट इज द रेड कलर्ड होता है। कैसा होता है, रेड कलर, इसीलिए इसको बोलते हैं कंप्लीट डोमिनेंस, राइट। अभी इधर इनकम्प्लीट डोमिनेंस में अगर आप देखेंगे तो नाइदर एलील इज डोमिनेंट, इसका जब क्रॉसिंग करते हैं, ये है कैपिटल आर, ये है स्मॉल आर, ये है डोमिनेंट, ये है रिसेसिव। मगर आप जब रिजल्ट के ऊपर देखते हैं तो इसमें से जो भी हमें रिजल्ट मिलता है वो कैसे दिखाया गया है, कैपिटल आर स्मॉल आर। इसका मतलब है ये रेड कलर नहीं है, तो ये इनकम्प्लीट डोमिनेंस में partially observation of that is the characters, and all these offsprings in case of this generation is that is the not red colored but they are pink colored, so it is called as the incomplete dominance. This is the difference between that is the complete and incomplete dominance. This is the first and best example observed in snapdragon. Also the second example is the Mirabilis jalapa. These are the famous examples of that is the incomplete dominance, and also you observe the difference between complete and incomplete dominance. This is the first example of Mendelian deviation. Okay, next point is that another second example, codominance, and that codominance is observed in case of that is the cattle. Codominance is observed in case of that is the cattle. अभी यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो दो प्रकार के जो कैटल्स है, एक रेड स्किन कलर्ड कैटल है जिसको हम डिनोट करते हैं कैपिटल आर से, और दूसरा जो है व्हाइट स्किन कलर्ड कैटल है, ये डब्ल्यू, ये कंडीशन से दिखाते हैं, दोनों होमोजाइगस कंडीशन में यहाँ पे। अभी ये जो रिप्रेजेंटेशन है रेड कैटल का, यहाँ पे प्योरली होमोजाइगस रेड स्किन कलर्ड कैटल है जिसको हम डिनोट करते हैं कैपिटल आर। इसका अगर हम क्रॉसिंग प्योरली व्हाइट यानी होमोजाइगस व्हाइट इसको डिनोट किया है डब्ल्यू से, इसके साथ जब क्रॉसिंग करते हैं तो हमें दोनों का कॉम्बिनेशन जो है वो हमें थर्ड में मिलता है, और थर्ड एनिमल का जो स्किन कलर है वो रोन कलर का होता है, और रोन कलर का मतलब है जिसमें रेड एंड व्हाइट
हेयर्स स्किन के ऊपर उनके दिखाई देते हैं, ये हेट्रोजाइगस कंडीशन है और इसको डिनोट किया जाता है कैपिटल आर कैपिटल डब्ल्यू हेट्रोजाइगस। यहाँ पे कैपिटल आर कैपिटल डब्ल्यू हेट्रोजाइगस। ये यहाँ का जो पिक्चर है, यहाँ का जो इमेज है, यहाँ पे क्लियरली ओरिजिनल लाइव दिखाया गया है। इस प्रकार के एनिमल्स को हम क्या बोलते हैं, रोन कलर्ड कैटल्स, यानी रेड पैचेस, ये जो कंप्लीट रेड है इसके ऊपर रेड पैचेस है, ये जो व्हाइट है प्योर व्हाइट है इसके भी इसके ऊपर पैचेस है। ये दोनों का कॉम्बिनेशन जो है, टुगेदरनेस जो है, वो हमें इस एनिमल्स में दिखाई देता है। इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, कोडोमिनेंस phenomenon. This is also the best example of what that is the post Mendelian deviation. Okay, इसका ही रिप्रेजेंटेशन हम इस प्रकार दे सकते हैं। ये देखो, जो पेरेंटल जनरेशन है यहाँ पे वो रेड कलर का दिखाया गया है, यहाँ पे व्हाइट कलर का जो एनिमल है वो कंप्लीटली व्हाइट दिखाया गया है। इसका जो जीनोटाइप है कैपिटल आर है, इसका जो जीनोटाइप है स्मॉल आर है। इसको हम W भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं क्योंकि व्हाइट जो है उसके हिसाब से। फिर उसके बाद जो पेरेंटल जनरेशन है, इसका जो गैमेट मिलता है होमोजाइगस कंडीशन है तो कैपिटल आर, ये होमोजाइगस कंडीशन है तो स्मॉल आर। फिर उसके बाद जो हमें उसका फर्स्ट फिलियल जनरेशन मिलता है, तो फर्स्ट फिलियल जनरेशन हमें कैसे मिलता है, रोन कलर्ड स्किन कैटल यहाँ पे मिलता है। इसके ऊपर आप देख सकते हैं क्लियरली, मैंने इसके पहले इमेज में दिखाया था, ये जो है वो रेड पैचेस है और बीच में जो है ये व्हाइट पैचेस है, बीच में जो है ये व्हाइट पैचेस, राइट। दोनों ही कैसे होते हैं, पार्शियली एक्सप्रेस होते हैं F1 जनरेशन में। बाद में जब F1 जनरेशन हम सेल्फिंग करते हैं, इसका अगर सेल्फिंग करते हैं तो उसके जो पेरेंटल फिनोटाइप है, ये कैपिटल आर स्मॉल आर, ये कैपिटल आर स्मॉल आर, इसके ये गैमेट्स है कैपिटल आर अलग स्मॉल आर अलग, कैपिटल आर अलग स्मॉल आर अलग। और इसको हम जब F2 जनरेशन में उसका जब रिजल्ट आता है तो इसमें से एक जो एनिमल है जो देखते हैं यहाँ पे रेड कलर्ड कैपिटल आर, यानी एक पेरेंट जो है इसकी तरह सेम टू सेम रेड कलर्ड है। दूसरा लास्ट का जो देखेंगे ये कंप्लीटली व्हाइट कलर्ड है, ये व्हाइट कलर उसके एक पेरेंट के जैसा है, कंप्लीटली व्हाइट है। और ये दोनों के बीच में जो दो दिखाई गए हैं, ये दोनों कैसे है, रोन कलर्ड कैटल्स है, रोन कलर्ड कैटल्स, यानी कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर। ये किसकी तरह दिखते हैं, ये उसके F1 जनरेशन जो है उसकी तरह वो दिखते हैं। इनका जो कॉम्बिनेशन है वो पार्शियली एक्सप्रेशन है, जो दोनों कैरेक्टर टुगेदर एक एनिमल में दिखते हैं, इसको बोलते हैं रोन कलर्ड स्किन कैटल्स। इसमें यहाँ पे दिखाया है इनहेरिटेंस ऑफ कोट कलर इन दैट इज द कैटल्स। जब हम ऐसा क्रॉसिंग करते हैं तो यहाँ पे पार्शियली एक्सप्रेशन हमें दिखता है। ये कंप्लीट डोमिनेंस इनकम्प्लीट डोमिनेंस से कंप्लीटली अलग है, जिसको हम बोलते हैं कोडोमिनेंस। ओके, नेक्स्ट इसी का कंपैरिजन मैंने नेक्स्ट पॉइंट में किया है। आप थोड़ा सा मेरे वर्ड्स के ऊपर ध्यान दीजिए, आपको अगर दिखाई नहीं देता है तो मैं यहाँ पे रिकॉल करता हूँ। यहाँ पे मैंने दोनों का डिफरेंस लिया है, कोडोमिनेंस एंड इनकम्प्लीट डोमिनेंस। इसके बीच में जो भी डिफरेंस है वो मैंने यहाँ पे दिया है। अभी देखो, फर्स्ट कॉलम है कोडोमिनेंस का, दूसरा है इनकम्प्लीट डोमिनेंस का। तो कोडोमिनेंस का मतलब क्या है, कोडोमिनेंस इज द अपीयरेंस ऑफ बोथ पैरेंटल फिनोटाइप टुगेदर, राइट, इन द ऑफस्प्रिंग, यानी रोन कलर में, when a cross is done between individual with two different phenotype। हमने कौन से फिनोटाइप लिए थे, एक रेड कलर का और एक व्हाइट कलर का, जो दो स्किन कलर के अलग अलग एनिमल्स थे। मगर जो F1 जनरेशन था, जो रोन कलर था, उसमें दोनों फिनोटाइप टुगेदर है, जो ऑफस्प्रिंग में दिखाई देते हैं आफ्टर द क्रॉसिंग।
यही पॉइंट अगर डिफरेंस में इनकम्प्लीट डोमिनेंस में देखा जाए तो इज द अपीयरेंस ऑफ अ थर्ड फिनोटाइप which is combination of both parental alleles when a cross is done between individual with two different, that is the phenotype. appearance of क्या बोलते थर्ड फिनोटाइप मिलता है, यहाँ पे दोनों का कॉम्बिनेशन नहीं, अलग टाइप का कॉम्बिनेशन, यानी पिंक कलर्ड फ्लावर हमें यहाँ पे मिलता है. सेकंड, द इफेक्ट ऑफ बोथ alleles आर इक्वली कंस्पाइकस, यानी दोनों जो फिनोटिपिक कैरेक्टर है उसके जो जीन्स है, alleles है, जो हमें इक्वली थर्ड एनिमल में दिखाई देते हैं. यहाँ पे द इफेक्ट ऑफ वन ऑफ द टू पैरेंटल एलील इज मोर कंस्पाइकस, यानी पिंक कलर जो दिखता है हमें वो रेड के नजदीक दिखता है. इसका मतलब है द इफेक्ट ऑफ वन ऑफ द टू पैरेंटल एलील्स इज मोर कंस्पाइकस. थर्ड डिफरेंस है बोथ पैरेंटल फिनोटाइप्स आर मिक्स्ड टुगेदर टू फॉर्म अ थर्ड फिनोटाइप. कोडोमिनेंस में क्या होता है, दोनों जो पैरेंटल फिनोटाइप्स है वो दोनों पैरेंटल फिनोटाइप एक दूसरे के साथ मिक्स होते हैं और थर्ड फिनोटाइप हमें दिखता है. यहाँ पे द टू पैरेंटल एलील्स आर नॉट मिक्स्ड टुगेदर, दोनों एक दूसरे के साथ मिक्स नहीं होते. उसके बाद बोथ पैरेंटल एलील्स प्रोड्यूस देयर इफेक्ट इंडिपेंडेंटली, यानी रेड का रेड, व्हाइट का व्हाइट, वो दोनों इंडिपेंडेंट होते हैं. यहाँ पे अगर देखेंगे तो इफेक्ट ऑफ द टू पैरेंटल एलील इज इंटरमीडिएट, ब्लेंडिंग इफेक्ट है, इंटरमीडिएट ऑन द ऑफस्प्रिंग, है ना, इंटरमीडिएट ऑफस्प्रिंग तैयार होता है. रेड भी नहीं होता है, व्हाइट फ्लावर भी नहीं होते, पिंक कलर के फ्लावर तैयार होते हैं. नेक्स्ट, बोथ पैरेंटल एलील्स कैन बी ऑब्जर्व्ड इन द ऑफस्प्रिंग, है ना, नाइदर पैरेंटल एलील्स कैन बी ऑब्जर्व्ड इन द ऑफस्प्रिंग, यानी इसमें रेड भी दिखाई देता है, व्हाइट भी दिखाई देता है ऑफस्प्रिंग में. इसमें रेड भी दिखाई नहीं देता, व्हाइट भी नहीं दिखाई देता, पिंक कलर दिखाई देता है. उसके बाद क्वालिटेटिव अप्रोच ऑफ द जीन एक्सप्रेशन, क्वांटिटेटिव अप्रोच ऑफ बोथ इनकम्प्लीटली डोमिनेंट एलील. इसका जो एग्जांपल दिया है थोड़ा अलग टाइप का भी दिया है, दूसरे भी एग्जांपल इंक्लूड्स रोन कैरेक्टर जो हमने अभी देखा है, डिटेल में एक्सप्लेन किया है, और दूसरा जो एग्जांपल है द इनहेरिटेंस ऑफ ब्लड ग्रुप, एबी ब्लड ग्रुप. और इसके जो एग्जांपल है वो पिंक कलर का जो स्नैपड्रैगन का फ्लावर है, आल्सो इनहेरिटेंस ऑफ द हाइट है, वेट है, आई कलर है, ये दूसरे टाइप का एग्जांपल है. दिस इज द डिफरेंस बिटवीन कोडोमिनेंस एंड इनकम्प्लीट डोमिनेंस. इसकी मदद से भी आपको दोनों का डिफरेंस समझ में आया होगा. So these are the two in detail examples of post-Mendelian deviation. The first one is called as the incomplete dominance and second one is called as the codominance. Thank you.